Hello students, just welcome to you all for the channel Knowledge Point. And today the chapter Triangle of class 9th. From this chapter I brought for you some questions from R.S. Agarwal and R.D. Sharma. And continuously I have been giving the questions solution in last 3 videos, and this is the part 4. And just question number 1, you see, a triangle is right angled at A and L is a point on BC such that AL perpendicular BC. Prove that angle BAL equal to angle AC. First of all, students, we draw a right triangle. This is right triangle and right angled at A. Other two acute angles B and C. L is a point on BC such that AL perpendicular BC. Prove that BAL ACB. Okay, first of all, students, just I am writing given a triangle ABC, right angled at A, this one, okay, and AL perpendicular BC, AL perpendicular BC. Just we have to prove, okay, angle BAL is equal to angle ACB. Okay, students. Now we have to use the angle sum property of triangle. So for proof, you see, first of all, in triangle ABC, as you know, angle BAC is 90 degree given. Now sum of all three angles of a triangle, that means angle BAC at A plus ABC plus ACB is equal to 180 degree. Yes, by angles sum property of triangle. This is first equation. Once again, just you see BL देखिए कहाँ है. So we have to go in triangle BAL. इन ट्रायंगल BL में आएंगे. हमारे पास ALB 90 डिग्री है. ALB क्यों 90 डिग्री है? तो AL परपेंडिकुलर है BC. एज AL हमारे पास थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री ऑलरेडी प्रूव्ड है स्टेटमेंट. सो जस्ट एंगल BAL प्लस एंगल ABL प्लस ALB दैट इज 90 डिग्री, एंगल ALB ये भी 180 डिग्री, ये भी बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब यहाँ से BAL इनकी ज़रूरत ही है और ABL जिनको आप ABC भी लिख सकते हो. ABL और ABC एक ही है. और ALB दैट इज 90 डिग्री, ALB 90 डिग्री. ओके, आप यह भी लिख सकते हो कि एंगल ABC जो है ना ABL के इक्वल है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन रिटन. और देखिए BL प्लस
एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री राइट साइड में गया, 180 में से 90 डिग्री। अब ज़रा देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 ना लेकर के इसमें आप देखिए 90 डिग्री कौन सा है, बी ए सी, तो बी ए सी 90 डिग्री था, आप इसको इधर ले जाओ, एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी ए सी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 1 डाल दो, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ज़रा देखो ये हमारे पास ए बी सी और ए सी बी जो 90 डिग्री है, ए बी सी, और यहाँ से बी एल और ए बी सी, एंगल बी एल प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी कैंसिल हो गया, बी एल और ए सी बी इक्वल है, जहाँ हमें प्रूव करना था एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी। Students, just this solution has been completed for question number 1. Students, now see question number 2. So that the bisectors of the base angle of a triangle can never enclose a right angle. आप सबसे पहले ट्रायंगल को बनाइए। कहता है इस ट्रायंगल के बेस एंगल का बाइसेक्टर, बेस एंगल है बी सी, इनके बाइसेक्टर कभी भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करके, बाइसेक्टर जो है इनके इनक्लोज 90 डिग्री पर नहीं हो सकते, यानी जहाँ ये बंद होंगे वहाँ 90 डिग्री कभी भी नहीं बन सकता है। ओके, so just start from figure and then given. What given? ABC triangle, a triangle, BO and CO, or the bisectors of angle B and angle C enclose at O to form angle BOC. To prove angle BOC can never be equal to 90 degree. But just imagine that a possible angle BOC is equal to 90 degree. Proof. If possible एंगल बी ओ सी 90 डिग्री ले लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन? देयर मे बी अ कंट्राडिक्शन दैट अपोजेस द स्टेटमेंट ऑफ 90 डिग्री एज बी ओ सी. सो यू सी फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री. ओके, दिस यू नो. But now you see in triangle BOC, in triangle BOC, angle BOC plus this one OBC plus angle OCB 180 degree. From where? By angle sum property, angles sum property of triangle, property of triangle. But here you see BOC 90 degree plus OBC, that means half of B, 1/2 of angle B, and OCB half of angle C, 180 degree. You see, since BO and CO bisect angle B and angle C, that's why it is written. अब देखिए 90 डिग्री को राइट साइड में ले चलिए और 1/2 कॉमन, तो एंगल B प्लस एंगल C, 180 डिग्री माइनस 90 तो 90 डिग्री,
दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 92 ज़ा 180। अब देखिए कि अगर बी प्लस सी 180 है, फ्रॉम हेयर देखिए बी प्लस सी 180, आप सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग एंगल बी प्लस एंगल सी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 180 0 डिग्री। इज दिस पॉसिबल? नेवर। It is never possible that any one of the angle of the triangle is 0 degree. So this contradiction, this is contradiction. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. Hence angle BOC can never be is equal to 90 degree. Students, just I completed solution of question number 2. Students, दिया है यह फिगर और इस फिगर के द्वारा बताना चाह रहा है आपको कि कुछ एंगल के जो वैल्यू हैं वो हैं अल्फ़ाबेटिकल ना होकर के ये हैं अल्फ़ा डिग्री, बीटा डिग्री, गामा डिग्री, ये लैटिन या कोई अदर जो है सिंबल में है, और ये एक्स डिग्री जो वेरिएबल है उसमें है। आपको प्रूव यहाँ करना है इस फिगर के माध्यम से कि एक्स जो है यह जो ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 180, दैट मीन्स इसे आपको प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के टर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन होना ही चाहिए। अब देखिए ये बीटा जो है, हम यहाँ से ये अगर ओ लेते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ से मिला देते हैं बी से ओ को फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ए बी सी है ही, और ये ओ हमने लिया, ये डी, और हमने यहाँ लिखा कि कंस्ट्रक्शन में क्या, ज्वाइन बी टू ओ, ज्वाइन बी टू ओ एंड एक्सटेंड इट टू डी तक। अब यहाँ ऐसा करने से देखें, यहाँ दो पार्ट में एंगल बी बट गया, जिसको 1 लिखा और 2 लिखा, और यह भी दो पार्ट में बट गया, एक्स भी, इसको 3 लिखा और 4 लिखा। यानी फॉर एक्स डिग्री 2 पार्ट्स 3 and 4, फॉर बीटा 2 पार्ट्स 1 and 2। सो नाउ बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और x दो पार्ट में बटा क्या हुआ, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। वी नो दैट, ऐसा लिखेंगे, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर तब बनता है जब कोई साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स, दो ही अपोजिट इंटीरियर होता है, इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे, ए बी ओ का साइड बी ओ प्रोड्यूस्ड है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ, जिसका साइड बी ओ इज प्रोड्यूस्ड है टू डी, जिससे एंगल एक्सटीरियर एंगल 3 जो है यह इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस अल्फा।
अल्फा डिग्री प्लस एंगल 1, ये इक्वेशन 1। अगेन ये BCO ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCO, ओके, साइड BO प्रोड्यूस टू D, साइड BO इज प्रोड्यूस्ड टू D। यहाँ से हमको एक्सटीरियर एंगल 4 मिलेगा 2 प्लस गामा के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस गामा, एंगल 2 प्लस गामा डिग्री। चलिए एडिंग करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से मिलता है 3 + 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4, जिसे लिखा जा सकता है x डिग्री। और यहाँ से नंबर में मिलता है 1 + 2, जिसे लिखा जा सकता है बीटा। 1 प्लस एंगल 2 प्लस अल्फा डिग्री है ही, प्लस गामा डिग्री है ही। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 x डिग्री हुआ, 1 हुआ बीटा डिग्री प्लस अल्फा डिग्री प्लस गामा डिग्री। इस तरह से हमारा x डिग्री के इक्वल आ गया, अरेंज करने पर अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री प्लस गामा डिग्री। स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है इन द गिवन फिगर और फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 360 डिग्री। इन सारे पॉइंट्स पर, सारे वर्टेक्स पर जो है एक एक एंगल बना है ABCDEF, और हमें 2 ट्रायंगल भी दिख रहा है, एक नाम से ABF और दूसरा CDE। तो हम जैसा कि जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो we know that sum of all angles, 3 एंगल्स होता है ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। तो सबसे पहले ABF में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABF, तो यहाँ से A प्लस एंगल B प्लस एंगल F, ये तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर करो। अगेन देखिए CDE, द सेकेंड ट्रायंगल CDE, इसमें आएगा एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, ये 180 डिग्री। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप 2 इक्वेशन के रेस्पेक्टिव साइड्स को प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ हमने वैसा ही किया है। एडिंग रेस्पेक्टिव साइड्स, यानी लेफ्ट को लेफ्ट से, रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ दिया है, देखिए 6 एंगल, आप उसको अरेंज करके भी लिख सकते हो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है, देखिए प्लस एंगल D भी है, प्लस एंगल E है, प्लस एंगल F है, और राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180 360 डिग्री। So students, just I have completed the solution of question number 4. Students, question number 5 कहता है इन ट्रायंगल ABC BD परपेंडिकुलर AC है and C परपेंडिकुलर AB. If BD and CE intersect at O, prove that angle BOC equal to 180 degree minus angle A. So first of all हम इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं।
ये है आपका ट्रायंगल ABC। अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट, यहां से कहता है BDAC पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, CE AB पर जाकर 90 डिग्री बनाता है। आपको BD और C बता रहा है कि इंटरसेक्ट जहाँ किया, लेटर O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको BOC दिखाना है 180 में से एंगल A। सो जस्ट फ्रॉम गिवन वी स्टार्ट। ABC is a triangle and BD perpendicular AC, also C perpendicular AB, also BD and CE, intersect at O. We have to prove angle BOC 180 degree minus angle A. Just we are proceeding for the proof. अब देखिए, इन ट्रायंगल BEC, चलते हैं BEC में। क्या है कि आपका ये BEC में एंगल 1 इसको मान लेते हैं, और ये ओवरऑल एंगल B है, और ये BEC, तो एंगल 1 प्लस एंगल B होल कंप्लीट एंगल B प्लस BEC 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ऐसा तो आप जानते ही। अब यहाँ से एंगल 1 रखेंगे, एंगल B भी रखेंगे। इसको रखना जो है सही नहीं होगा। BEC हमारे लिए 90 डिग्री उपलब्ध है, जिसके लिए आप रीज़न लिख दो कि C परपेंडिकुलर AB, that's why BEC 90 डिग्री। ओके, अब यहां से एंगल B प्लस एंगल 1, या इसको एंगल B को आप रहने दो, एंगल B, ओके, एंगल B के बदले आप 1 रहने दो, ज़्यादा बेटर। एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल B। तो एंगल 1 क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस एंगल B। आप इसको एंगल 1 लिखो। अगेन देखिए आप, इसी तरह से हमने अभी BEC में चला और BCD में चलेंगे। इन ट्रायंगल BCD, okay, now just I am going for triangle BCD. In BCD you see angle, इसको आप 2 मान लो, this part को only 2, तो एंगल 2 प्लस होल एंगल C प्लस BDC, ओके, एंगल 2 प्लस एंगल BDC प्लस this whole angle C is equal to 180 degree. Okay, now you see angle 2, that means कि DBC आप कह सकते हो उसको। अब हमें एंगल 2 को ज्यों कहते हो एज इट इज छोड़ना है। BDC को आप 90 डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और प्लस एंगल C को भी आप ज्यों कहते हो छोड़ दो 180 डिग्री। रीज़न आप ज़रूर लिखो कि BDC को आपने क्यों 90 दिया। BD परपेंडिकुलर AC,
सिंस बी डी परपेंडिकुलर ए सी, देयरफॉर एंगल बी डी सी ये 90 डिग्री। ओके, अब जस्ट जो है ये एंगल 2 रहने देंगे और तब क्या होगा 180 में से ये 90 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आएगा, माइनस एंगल सी, ये आएगा आपका एंगल 2 का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल सी। अब यहां से क्या करना है, हमें BOC के लिए निकल पड़ना है। तो इन ट्रायंगल BOC, देखिए यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस BOC, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। आप इसको लिखिए बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 1 और 2 का मान फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूज कीजिए। ओके, तो 1 के लिए आप क्या देंगे 90 माइनस बी, और 2 का 90 माइनस सी, प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। आप यहां लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 90 90 180 डिग्री, माइनस बी और सी से कॉमन ले लो, माइनस बी प्लस सी इस तरह से, और प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए और ये तो यहाँ आ गया 0 आपका। अब यहाँ से देखिए ये माइनस है, आप इसको लिख सकते और B प्लस सी 180 डिग्री माइनस ए, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू A0। यहाँ लिख दीजिए क्यों आपने लिखा B प्लस सी को 180, तो सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होता है, तो आपने लिखा एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब देखिए माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस एंगल A प्लस एंगल BOC इक्वल टू 0। आप इस दोनों को राइट साइड में लेकर के चेंज करो, एंगल BOC क्या आ जाएगा माइनस 180 से प्लस 180, साइड चेंज करने से प्लस हो जाएगा माइनस A। स्टूडेंट्स you see angle BOC is equal to 180 degree minus angle A. So just I have proved and with clear concept. Students, question number 6 जो कह रहा है कि if the sides of a triangle are produced in order prove that the sum of exterior angles so formed is equal to 4 right angles. Now just according to hypothesis हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इनके नाम रखेंगे, इससे आगे जानेंगे कि कहता क्या है स्टेटमेंट। इन ऑर्डर का मतलब एक क्रम में, अगर आगे बढ़ाएंगे तो आगे की तरफ ही बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो सभी साइड को पीछे। यहाँ से हमने AB को बढ़ाया अगर इस ऑर्डर में, और ये लिया हमने D, BC को बढ़ाया एक ऑर्डर में, ये देखिए एक्सटेरियर एंगल बना CBD, BC को बढ़ाया E तक, एक्सटेरियर एंगल बना ACE, और इसी ऑर्डर में हम साइड CA को बढ़ाया F तक, बना BAF।
आप इस एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है यानी CBD आप इसको 1 के जो है रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये A पर बना को 1, B पर 2 और ये C पर 3। अब यहाँ से हमें पता करना है, यानी जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है वह कहता है कि जो एंगल्स है एक्सटीरियर में इन सभी के सम जो हैं वह 360 डिग्री, 4 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री में हम इसको जो है जनरेट करेंगे। तो चलिए गिवन अकॉर्डिंगली लिखते हैं। जैसा कि ABC ट्रायंगल है, इज ए ट्रायंगल, इनके साइड AB, इट्स ऑल साइड्स AB को, फिर BC को, फिर CA को प्रोड्यूस्ड किया गया, आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स, AB को D तक पॉइंट्स D, BC को E एंड CA को F तक रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव ओके एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट मीन्स कि आप एंगल A पर है तो BAF, एंगल BAF, और B पर है तो CBD, एंगल CBD, और C पर है तो ACE। ये 360 डिग्री प्रूव करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े हैं कि कोई भी लाइन पर कोई भी दूसरा लाइन, कोई भी लाइन पर कोई दूसरा रे, कोई रे पर कोई दूसरा लाइन सेगमेंट अगर स्टैंड होता है तो जो लीनियर पेयर बनते हैं उनके सम 180 डिग्री होते हैं। आते हैं हम ये A पर जो BA फॉल होता है और रे CE है, लीनियर पेयर का यूज करते हैं कि CF रे, CF इज ए रे एंड इस पर फॉल कौन सा हो रहा है, BA स्टैंड्स ऑन इट। BA एक लाइन सेगमेंट है, स्टैंड्स ऑन इट। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, BAC प्लस एंगल 1, एंगल BAC प्लस एंगल 1 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर एक्सियोम लिख दीजिए, एक्सियोम। सिमिलरली A से हट के अब B पर देखते हैं तो ABC प्लस, अब यहाँ पर कौन सा रे, ये क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट या रे भी कह सकते हो आप कि B स्टैंड्स ऑन। अभी एक रे AD है जिस पर B स्टैंड्स ऑन इट। ओके, नाउ हेयर BA रे, ओके, BA रे भी कह सकते हो सीधा। अब है कि B पर कौन सा है, तो B पर है A, क्या कहते हैं, AD रे एंड B स्टैंड्स ऑन इट, ऑन रे AD, ऑन रे AD। एक दूसरा रे कौन सा स्टैंड्स कर रहा है, B स्टैंड्स ऑन इट, BE स्टैंड्स ऑन इट। इसके आधार पर एंगल 2 प्लस ABC, एंगल ABC प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री। ओके, ये भी लीनियर पेयर एक्सियोम। अब देख लीजिए, अब हमने A पर जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर दिया, B पर, अब C पर। तो C पर क्या है, B पर स्टैंड कर रहा है CF। ओके, CF स्टैंड्स ऑन, रे भी दे सकते हैं, रे CF स्टैंड्स ऑन रे BE, ऑन रे BE। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ACB प्लस एंगल 3, ACB प्लस एंगल 3
ये भी लीनियर पेयर एक्सियम, यहां से तीनों इक्वेशन को एडिंग कर देंगे, एडिंग रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ थ्री इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। यहां से देखिए BAC एक ग्रुप बना लीजिए, प्लस ABC प्लस ACB, दूसरा ग्रुप बनाइए 1, 2, 3 का, और इधर से आप 3 टाइम्स 180 180 180 यानी 540। ठीक है, आप इसको इतना ही लिखिए। अब देखिए कि किसी भी ट्रायंगल में BAC, ABC और ACB का जो सम है वह क्या होगा 180 डिग्री, तो आप इसके बदले में आप 180 डिग्री लिख दीजिए। रीज़न यहाँ लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल ABC ऑल थ्री एंगल्स सम BAC प्लस ABC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी तो 180, और देखिए एंगल 1 मतलब BAF, 1 और BAF सेम है, और 2 मतलब हो गया CBD, एंगल CBD प्लस 3 मतलब ACE, एंगल ACE 540 डिग्री। ये 1T माइनस कर दो, जो रिमेनिंग बचा एंगल BAF प्लस एंगल CBD प्लस एंगल ACE इक्वल टू 540 माइनस 180 यानी 360 डिग्री। स्टूडेंट्स देखिए यही था कि 4 राइट एंगल्स एक्सटीरियर एंगल के सम को प्रूव करना। स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव completed the 6 questions in this video. Important questions for you all students, and except I lot of expecting from you. You must take care, you must enjoy, and hope you will be taking care at your study. Thanks for my video that you are watching, you are getting advantage. Hope a nice day.